Hello everyone, welcome to Economics by Vashan Apatha. So in today's video lecture, we'll be studying about the previous year question that was asked from 2012 to 2019. So this was a question that was asked in 2012 June paper 3. The question is इसमें match the following करना है जिसमें हमें theories दे रखे हैं and we have to match it with the economists किन्होंने कौन सी theory दी थी. So cardinal utility theory we have already studied. This is given by Alfred Marshall. Revealed preference theory was given by Samuelson. Indifference theory जो थी that was given by Hicks and Allen, and utility under uncertainty was given by Newman and Morgenstern. So accordingly जो answer है that is C. Next question, this was a question that was asked in 2012 December paper 2. The question is identify the order of chronological development of the theory of demand. So इसमें Marshall theory जो था that was given by Marshallian जो first हमने पढ़ा था, second indifference curve पढ़ा था, फिर हमने revealed preference and then weak axiom जो theory थी of the revealed preference that was given, that is WAP. So A, B, C जो है that's the correct option. A, B, C is the correct ordering. So D जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2013 December paper 2. The question is put the following in chronological order on the basis of the development. So law of demand पहले आया था, फिर law of diminishing marginal utility आया था, and then indifference curve analysis and then revealed preference theory. So first, fourth, third and second. So B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2015 June paper 3. The question is इसमें भी match the following करना है. Cardinal approach जो था that was given by Alfred Marshall. Indifference curve जो था that was given by Hicks and Allen. And revealed preference theory जो था that was given by Samuelson. And new utility theory of risk choice was given by Von Neumann Morgenstern. ठीक है. So accordingly जो हमारा आंसर है that is third. Next question, this was a question that was asked in 2012 June paper 3. The question is revealed preference approach to the derivation of indifference curve. इसमें we have different assumptions. इसमें assume करते हैं stability over time of an observed person's taste. So that is correct. Assume करते हैं कि सारे लोगों का identical taste है, ऐसा कुछ नहीं है इसके assumption के अंदर. C जो है that says कि हम rely करते हैं on the repeated observation in the market behavior of a single person. आगे उसका repeated behavior रहेगा, consistency रहेगी उसकी choice के अंदर. So accordingly A and D जो है that is correct option. So D जो है that is correct option. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2013 December paper 3. The question is which of the following is true? Indifference curve slope downward from left to right, that is also correct. Indifference curve slope from right to left, it is not correct. Indifference curves जो होते हैं they are convex to the point of origin, ये हमने पढ़ा है properties के अंदर. And D also says कि indifference curve जो है वो कभी intersect नहीं करते. This is also a property of indifference curve. So accordingly A, C, D जो है that's the correct option. So C जो होगा that is the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2014 December paper 2. इसमें हमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का पूछ रखा है. सो एज वी नो कंज्यूमर जो है उसकी चॉइस कहाँ पे होती है. इट इज़ यूजली जब हमारा जो बजट लाइन है दैट इज़ टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व. सो अगर टेंजेंसी होगी देन वी से कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है. सो टेंजेंसी कब होती है जब हमारा स्लोप बजट लाइन का विच इज़ प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई विच इज़ द प्राइस रेशियो इज इक्वल टू MRS विच इज़ द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. सो जब हम MRS को इक्वेट कर देते हैं प्राइस रेशो के साथ वी गेट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. प्राइस रेशो हमारा क्या है जिसके अंदर में प्राइस जो है गुड वाई का दे रखा है 16, प्राइस ऑफ एक्स हमें निकालना है, हमारे एस 2.5. हम 2.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 40. सो अकॉर्डिंगली 40 जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो दैट इज़ द सेम थिंग रिटन हियर कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कब होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशो, जिसके अंदर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाज 2.5 एंड प्राइस ऑफ वाई 16. सो इफ वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम वी गेट प्राइस ऑफ एक्स एज 40. सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज 40. Next question, this was a question that was asked in 2012 June paper 3. The question is which of the following are conditions of consumer equilibrium in two commodity case. जहाँ पे हमें यूटिलिटी यू जो है दैट्स द यूटिलिटी एंड P1 एंड P2 आर द प्राइस ऑफ गुड. दो गुड्स का प्राइस है जिसमें वी आर गिवन द डिफरेंशियल ऑफ यूटिलिटी का हमने डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू 0. तो इसमें जैसे हमने टू कमोडिटी केस के अंदर देखा था इट इज़ ऑलवेज द केस जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है
गुड एक्स का डिवाइड कर देते हैं उसके प्राइस से, एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वाई का उसको डिवाइड कर देते हैं प्राइस ऑफ दूसरे गुड से. सो दिस इज़ अ केस जहाँ पे डिफरेंट प्राइजेज हैं. अगर डिफरेंट प्राइजेज नहीं होती तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होता है. सो दैट इज़ अ केस इन टू कमोडिटी केस. सो ऐसा कोई केस नहीं है, दैट्स द ऑप्शन, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है. सो अकॉर्डिंगली डी जो है नन ऑफ द अबव इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज़ द केस जहाँ पे अगर जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, जो परचेज करता है दो गुड के अंदर, वो टेन कब हो सकता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. अगर दो गुड्स की बात करते हैं उनके प्राइसेस अलग अलग हैं, सो इन दैट केस द केस दैट बिकम्स इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को डिवाइड कर देते हैं उस कमोडिटी के प्राइस के साथ, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई का उसको डिवाइड कर देते हैं प्राइस ऑफ वाई, जिसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है जो लास्ट रुपीज स्पेंड कर रहा है दैट विल बी इक्वल for the price of each of the good that is being spent. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2013 June paper 3. The question is the utility function is given by u equals to function of x y, wherein u जो है that's the total utility of good x and good y जो कि consume हो रहा है, और जो budget constraint है that is given by c equals to px into x plus py into y, wherein px py जो है they are prices of good x एंड गुड वाई, और कंडीशन जो है जिसके अंदर मैक्सिमाइज होती है यूटिलिटी वो कौन सा है. सो दैट इज़ अभी हमने पढ़ाई है जहाँ पे कंज्यूमर का भी जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स बाय प्राइस ऑफ गुड वाई, वेयर इन मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसके अंदर हमें फंक्शन जो दे रखा है यूटिलिटी का उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई विच इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई. सो अकॉर्डिंगली बी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 जून पेपर 3. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक असम्पशन ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस. यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल होती है, क्वांटिफाई एंटिटी होती है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज करते हुए चेंज इन द रियल इनकम, ऐसा कुछ नहीं होता. अजम्पशन में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. हमने बोला था कि जो मनी स्पेंड होता है दैट उसकी जो यूटिलिटी है वो सेम रहेगी. एंड थर्ड इज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, ऐसा भी कुछ नहीं है. एंड द फोर्थ सेज कि जो यूज़ है ऑफ द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड इन जजिंग द बिहेवियर इज मार्जिनल यूटिलिटी. सो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो आंसर सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 December paper 2. The question is which is called Gaussian second law. So we have already studied किसे हम Gaussian second law बोलते हैं, that is equimarginal utility. Option A जो है that's the correct option. This was a question that was asked in 2014 December paper 3. The question is which of the following statements are true for revealed preference theory. Choose the correct answer for the code given below. So statement is income elasticity of demand should be positive. ये हम पढ़ चुके हैं, income elasticity of demand जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. So this is the correct option. एंड जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो सेटिस्फाई करता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को भी. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. सो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली ए जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2017 November paper 2. The question is assertion और रीजन से रिलेटेड है. रिवील्ड प्रेफरेंस जो है वो एक्सक्लूड कर देता है एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन गुड विच इज़ करेक्ट. एंड सेकेंड थिंग इज रीजन जो है दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो कंसिडर करते हैं सिर्फ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, विच वी हैव स्टडीड कि वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही देखता है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं देखता. सो अकॉर्डिंगली एजर्शन तो सही है, रीज़न सही नहीं है. ठीक है, रीज़न सही नहीं है. सो थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज रिलेटेड टू द स्लत्स्की. सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2016 जुलाई पेपर 2. द क्वेश्चन इज स्लत्स्की का इक्वेशन जो है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं. इसके अंदर बेसिकली स्प्लिट करते हैं प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट. जो प्राइस इफेक्ट को स्प्लिट कर देते हैं इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन. सो अकॉर्डिंगली थर्ड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो दैट इज़ देयर कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर हम उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं टोटल इनकम इफेक्ट को, जिसमें इनकम इफेक्ट जो है वो बेसिकली बताता है कि कितनी इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर, अगर कोई प्राइस के अंदर चेंज आता है तो उसकी परचेजिंग पावर में कितना चेंज आएगा. एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इस कि अगर प्राइस में चेंज हुआ है तो कोई ऑल्टरनेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स कि प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है. सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. That is there. The same thing is written here. And now there is a match the following. This was a question
दैट वाज आस्क्ड प्रीवियसली, जिसमें वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर जो परचेज करे, परचेज इज रिलेटेड विद बजट लाइन, वेरियस कॉम्बिनेशन जो गुड्स जो कमोडिटी वो प्रोवाइड करे जो कि इसको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। एंड सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द बजट लाइन ऑन द इंडिफरेंस कर्व, उसे हम द कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ पे टेंजेंसी होती है बजट लाइन की इंडिफरेंस कर्व के साथ, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली डी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2019। सो इसके अंदर हमें अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो ये दिस वी हैव स्टडीड सेवरल टाइम्स। पहले कौन आया था? मार्शल, फिर हिग्स, फिर एलन, एंड देन सैमुअल्सन, एंड देन स्टोन। सो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन इज 4th, ठीक है। सो दैट इज़ आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।